So continuing with chapter number 4, determinants. Today we'll be applying rather the properties of determinants. So exercise 4.2. Okay, format क्या होता है questions के? Without expanding, prove the following using the properties of determinants, right? So the format of the question is कि मुझे directly expand नहीं करना, मुझे पहले इसमें कुछ properties apply करनी है and then last में जब कोई और property apply नहीं हो रही तो हम एक बार expand करेंगे बस. बात समझ में आ रही है क्या? And we need to find out, we need to prove what is given. Now मैं हमेशा कहता हूँ 3 1 दिखते हैं ना तो जीवन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है क्या? क्योंकि मैं 2 zeros बना सकता हूँ और 2 zeros बनाते ही मेरा काम खत्म हो. बात समझ में आ रही है? One more thing that I want to draw your attention to is मैं a minus b निकालूं चाहे b minus a निकालूं, कोई फर्क है क्या? No. मैं a minus b का फैक्टर कॉमन निकाल सकता हूँ या फिर मैं b minus a का कॉमन फैक्टर निकाल सकता हूँ. b minus a का निकाले तो बाद में माइनस निकाल लेंगे कॉमन, और क्या? Yes or no? Yes. The ideas needs to Yes, be very clear as to how we Yes, are going to approach these questions. मेरा thought process थोड़ा सा अलग होता है बाकी टीचर्स के साथ, so थोड़ा सा ध्यान देंगे. Okay? Now मेरा मत मानना ये है कि instead of going on to factors we should rather focus on simplification, right? जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 1 है, मैं कहता हूँ मैं किसी एक रो को पकड़ूंगा और बाकी 2 रोज को सबट्रैक्ट कर दूंगा. मैंने क्या कहा? मैं एक रो को पकड़ूंगा और बाकी के 2 रोज को क्या कर दूंगा? सबट्रैक्ट कर दूंगा, ताकि मुझे सिर्फ एक रो में चेंज करना पड़े. मतलब मैं एक साथ अप्लाई कर सकता हूँ एक स्टेप में. क्लियर है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, मैं इस फोटो को थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ लेकिन ये हो ही नहीं रही. I don't know. चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं. फिर इन दिस क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 1 और 1 दिखाई दे रहा है. सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. मैं क्या कहूंगा? मैं कहता हूँ रो 1 goes to रो 1 minus रो 3 and रो 2 goes to रो 2 minus रो 3. तो मैंने क्या किया? रो 3 को पकड़ा, रो 1 से भी सबट्रैक्ट कर दिया, रो 2 से भी सबट्रैक्ट कर दिया. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Now what will happen because of this? What will I get? देखो 0 a minus b and I'll be getting a square minus b square. Yes or no? Sorry. Yes, sir. A minus c and a square minus c square. Now a square minus c square को a minus c a plus c लिखा जा सकता है क्या? Yes, sir. a square minus c square को मैं a minus c a plus c लिख पाऊंगा? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. Now रो 2 के अंदर क्या आएगा? 0 No, b minus c and then b minus c b plus c. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? no, sir. And lastly मुझे मिलेगा 1 No, sir. और c square. Now you can see from row 1 a minus c is coming out to be common. Yes, sir. Yes, sir. और रो 2 में Yes, से sir. b minus c कॉमन आ रहा है. So what I'm going to get here is a minus c into b minus c और ब्रैकेट डिटरमिनेंट के अंदर 0 1 a plus c 0 1 b plus c 1 c और c square. Now across which row or which column would you like to expand? Column 1. Column 1 के across expand करेंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. So I'll be getting a minus c b minus c into 1 multiplied by b plus c minus a plus c, that is b minus a. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now इसमें से माइनस निकाल लो, इसमें से भी माइनस निकाल लो. दो टिक वाले में से दोनों में से माइनस निकाले तो माइनस माइनस प्लस. What will I be getting? a minus b into b minus c into c minus. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. Everyone is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's talk about the second part of this question. इसमें भी 3 1 नजर आ रहे हैं. Okay, Jayvardhan, what operation was you try and apply? Sir, C1 minus C3 और C2 minus C3. Perfect.
एकदम इसने C3 को पकड़ा, C1 को भी माइनस कर दिया, C2 को भी माइनस कर दिया, यस और नो? Yes. तो इसने कहा Yes. C1 goes to C1 minus Yes, sir. C3, C2 goes to C2 minus C3. सब लोग अप्लाई करेंगे एक बार अपनी नोटबुक में. Everyone will try and attempt it with me. फास्ट करेंगे थोड़ा सा काम, ओके? ओके, कितने बच्चों को a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी याद है? जैसे इनमें को फर्स्ट कॉलम में a क्यूब माइनस c क्यूब मिलेगा. a क्यूब माइनस c क्यूब इज, मैं लिख दे रहा हूं एक बार के लिए, a माइनस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ac. ओके, प्रियांशु सही लिखा है क्या मैंने बेटा? यस सर। थैंक यू बेटा. a क्यूब माइनस c क्यूब में हम क्या लिखेंगे? a माइनस c फिर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ac. Now in the second column what will happen? 1 minus 1 0, b minus c, and then b cube minus c cube. b cube minus c cube will be b minus c, b square plus c square plus bc. Yes or no? Yes. यस सर। Any problem anyone? No, sir. No, sir. सबको समझ में आ रही है क्या बात? एंड Yes, लास्ट yes, में sir. 1 c और c क्यूब. नाउ क्या मुझे फर्स्ट कॉलम में से a माइनस c कॉमन मिल रहा है Yes. और मुझे सेकंड कॉलम में से b माइनस c कॉमन मिल रहा है? Yes, sir. a माइनस c, b माइनस c into 0 0 0 0 1 1 1 c, a square plus c square plus ac, b square तो plus माइनस c. वन आएगा ओके, कहाँ माइनस वन आएगा बेटा? सेकंड रो में। क्यों? मैंने a माइनस c कॉमन लिया बेटा, है ना? और सी माइनस ए थी। हाँ, बाहर c माइनस a चाहिए, वो बाद में हम ले लेंगे ना माइनस इसमें से. यस सर। अभी जो मैंने बाहर लिखा है वो a माइनस c ही लिखा है बेटा, है ना? ओके, एवरीवन इज विथ मी राइट? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Now Yes, sir. expanding across row 1, रो 1 के अक्रॉस एक्सपैंड कर दे क्या? Yes, sir. So Yes, a sir. minus c, b minus c मिल जाएगा, and then 1 multiplied by b square plus c square plus bc minus a square minus c square minus ac. So if you will see, c square to c square cancel. Any issues anyone? नो सर। Sir. अब देखो, b square minus a square में मैं लिख सकता हूँ b minus a b plus a, और Yes, bc sir. minus ac में Yes, से प्लस का c कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में b minus a बच रहा है. Any problem anyone? No. नो सर। No, sir. Now you can see b minus a कॉमन आ रहा है, so a minus c into b minus c into b minus a, ब्रैकेट में मुझे मिल रहा है b plus a plus c. अब देखो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, दोनों टिक वाले में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a माइनस b फिर b माइनस c फिर c माइनस a. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सबको sir. समझ में आता है ना? मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया है, चलेगा? यस और फिर सर। ब्रैकेट में Yes, sir. a प्लस b प्लस c. देखो हमें यही प्रूव करना था क्या? Yes, Yes, sir. sir. a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a और a प्लस b प्लस c. कोई तकलीफ? No, sir. नो सर। No, sir. तो अगर मेरे पास 2 1 बन जाएं तो जीवन में कोई तकलीफ, 3 1 बन जाए तो जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। आगे बढ़े. Yes. एवरीवन, यस सर। ओके.
Moving ahead, let's talk about question number 9. Again, a lot is dependent upon कि मुझे क्या चाहिए right hand side में. Now, in 9th question, let's talk about 9th question. देखें 9th question में देखो x minus y चाहिए, y minus z चाहिए, z minus x चाहिए और x y y z z x जो भी अपने को मिलेगा वो मिलेगा. तो मैं कहता हूँ x minus y का फैक्टर चाहिए, z minus x का फैक्टर चाहिए. तो अगेन मैं कॉल रो 3 को पकड़ूं और रो 1 और रो 2 को सबट्रैक्ट कर दूं क्या? Yes. Yes, sir. Yes or no? So row 1 goes to row 1 minus row 3 and row 2 goes to row 2 minus row 3. अब कोई बच्चा ये कहता है सर आपको y माइनस z माइनस x चाहिए, तो आप x माइनस z क्यों निकाल रहे हो? मैं कह रहा हूँ इट्स फाइन ना, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में एक माइनस ही तो कॉमन लेना है. Yes. किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ ताकि कभी गड़बड़ ना करो. मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर कोई बच्चा कहता है सर यहाँ पे r1 माइनस r2 कर दो और फिर सर r2 के अंदर r2 माइनस r3 कर दो, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, एक स्टेप में नहीं कर पाएंगे, फिर तुम्हें 2 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे बिकॉज आई एम यूजिंग r2 एंड आई एम चेंजिंग r2 इन द सेम स्टेप. दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हमेशा फिक्स करो कि एक को पकड़ना है, बाकी को लास्ट वाली से सबट्रैक्ट कर दो. सो r1 goes to r1 minus r3 and r2 goes to r2 minus r3. So what will happen if we'll apply that? Let's see. X minus z, x square minus z square will give me x minus z x plus z. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. No, sir. No, sir. एंड लास्टली yz minus xy. देखो दोनों में ध्यान दो, y कॉमन आ रहा है क्या? Yes. And I'm Yes, getting a yes. factor of z minus x. किसी को कोई इशू समझने में? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. सबको समझ में आ रहा है? How are we applying the operations? Yes, sir. In the second row, Yes, what will sir. happen? Y minus z, y square minus z square को हम लिखेंगे y minus z, y plus z. एंड अगर तुम देखोगे रो 2 और रो 3 इन दोनों में, तो x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में विल बी गेटिंग z minus y. कोई प्रॉब्लम? No, sir. फिर यहाँ है z, z स्क्वायर और x स्क्वायर. नाउ फर्स्ट रो से x माइनस z भी कॉमन ले सकते हो, z माइनस x भी कॉमन ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू. मैं x माइनस z कॉमन ले रहा हूँ ताकि दो जगह प्लस आए. x माइनस z कॉमन. सेकेंड रो से y माइनस z कॉमन लिया. व्हाट आई एम गेटिंग हियर 1 x प्लस z y माइनस y, सॉरी. कोई प्रॉब्लम? 1 No, sir. No, sir. y plus z x z z square and x square. माय मिस्टेक, यहाँ पे माइनस x आएगा, सॉरी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. y माइनस z कॉमन लिया. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. No, sir. अब सर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? No, दो को जीरो बनाना, यही होता है मेन ऑब्जेक्टिव. Yes. अब देखो Yes, sir. मैं कहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे. r2 goes to r2 minus r1 and r3 goes to r3 minus z r1. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What I have tried and do is 1 minus 1, तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा. Yes, और sir. इस z को जीरो करने के लिए मैंने क्या किया, इस 1 में z मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर दिया. Yes, sir. Yes or no? सबको समझ में आती है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, No, sir. थॉट समझ में आ रहा है कि क्या थॉट अप्लाई किया गया है? Yes, sir. Yes, अब sir. मुझे 3 1s, मुझे 3 1 की जरूरत नहीं है. आई डोंट वांट 3 1. आई जस्ट वांट 1 1. एक बार एक आ गया, उसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकता हूँ. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now let's try and apply that. What I'm going to get is x minus z, y minus z. देखिए मुझे क्या मिल रहा है.
1 x plus z minus y. Now 1 minus 1 0, y plus z, देखो y plus z minus x plus z, तो y minus x मिलेगा क्या? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. R2 minus R1, Yes, दोनों को sir. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y plus z minus x minus z, z से z कैंसिल, I am getting y minus x, Yes, sir. and इसके अंदर minus x plus y, तो y minus x again. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Now No, sir. z minus z 0, देखो R3 में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, R3 minus z R1, तो R1 में z मल्टीप्लाई किया तो z minus z 0. यहाँ पे देखो क्या मिलेगा मुझे, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, xz plus z स्क्वायर हो जाएगा z से मल्टीप्लाई करने के बाद, है कि नहीं? और फिर मैं Yes, z sir. स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, Yes, तो z स्क्वायर माइनस xz माइनस z स्क्वायर, तो माइनस का xz मिलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, इसको z से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा, माइनस का yz, और मुझे इसके अंदर माइनस करना है, तो xy प्लस yz हो जाएगा क्या ये? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. No, Sir. समझ में आ रही है सबको बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ अगर मैं देखूं सेकंड रो से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे क्या मिल रहा है, x माइनस जेड y माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 x प्लस जेड माइनस 1 0 y माइनस 1 1 0 माइनस का एक्स जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड. इसको एक्सपैंड करते हैं एक बार. नाउ देखें, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, दो टिक वाले में से, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x, एंड देन 1 इंटू ये दोनों टर्म्स एक्स वाई Yes. वाई जेड प्लस जेड एक्स. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, देखो sir. यही प्रूव करना है क्या? Yes. तो हमें समझ में आ रहा है कि हम प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई कर रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, किसी sir. को भी प्रॉब्लम है प्लीज मुझसे बात करेंगे. No, sir. No, sir. No, sir. So again, look at the RHS, what do we want, and according to that keep taking out factors. Okay, but don't be very hard and fast upon x minus y, तो सर मैं y minus x नहीं लूंगा, मैं x minus y ही लूंगा. You can do that, but no need to do that. लास्ट में एक माइनस कॉमन लेके काम होता है हमारा. ठीक है क्या? Yes, sir. आगे बढ़े. Yes, sir. Okay, Yes, let's sir. talk about question number 10. In question number 10, ये मेरे को कुछ गिवन है, देखो काफी सिमेट्रिक है. x plus 4 है, x plus 4 है, x plus 4 है, 2x है, 2x है, 2x है, 2x है. Yes or no? Yes, sir. So a very Yes, sir. symmetric determinant, a very symmetric matrix, इसका determinant value मुझे निकालना है. Now I need a factor of 5x plus 4. How can I get that? मेरे पास R1 पे R1 plus R2 plus R3 करता हूँ. very good, very good. So I will say R1 goes to R1 plus R2 plus R3. Now whenever these are symmetric, कि भाई तीनों कॉलम्स में एलिमेंट्स तो सेम है, बस ऊपर नीचे की तरफ है, so we can always apply that. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So R1 goes to R1 plus R2 plus R3. मैंने अप्लाई किया. What I am going to get here is देखें 5x plus 4, 5x plus 4, 5x plus 4, 2x, x plus 4, 2x, 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 x plus 4. Now
5x plus 4 कॉमन आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. तो 5x plus 4 कॉमन यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया, तो मैं इस 5x plus 4 को बाहर लिख दे रहा हूँ, 5x plus 4, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 1 और 1। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. सबको समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Sir. देवेंद्र क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ मेरे पास 3 1 बन गए, 2 जीरोस बनाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। C1 goes to C1 minus C3, C3 को पकड़ा और C1 और C2 में से माइनस कर देंगे। कोई तकलीफ? No, sir. So this is 5x plus 4. What I'm going to get is 1 minus 1 0, 2x minus 2x 0, 2x minus x minus 4, x minus 4 आ रहा है क्या? Yes, sir. Now 1 minus 1 0, x plus 4 minus 2x, so 4 minus x, and 2x minus x minus 4, that is x minus 4. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Now first just multiply कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट रो के क्रॉस एक्सपैंड कर दें, 5x plus 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 into x minus 4 0, minus x minus 4 into 4 minus x। इस माइनस को अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 5x plus 4 into 4 minus x into 4 minus x मिलेगा क्या? Yes. Yes, sir. 5x plus 4 into 4 minus x का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. sir. सबको समझ में आ रही है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Moving on, second part of this 10th question. Again, you can see y plus k, y plus k, y plus k, y, 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 y. So R1 goes to R1 plus R2 plus R3. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So Yes. we'll Sir. quickly get the factor of 3y plus k. एक बार 3y plus k आ गया, उसके बाद में 3 1 मिलेंगे मुझे, 2 को 0 बनाएंगे, काम खत्म। Yes, sir. Any problem anyone? No, sir. No, sir. So that will be your of course homework. मैं यहाँ पे नहीं करूँगा ये वाला। Let's talk about 11th question. 11th question is again very simple. देखें, a minus b minus c है, मुझे a plus b plus c का फैक्टर चाहिए, तो बहुत जाहिर बात है इस minus b को plus b बनाने के लिए मुझे यहाँ पे plus 2b की जरूरत है, Yes, sir. और इस Yes, sir. minus c को plus c बनाने के लिए मुझे यहाँ पे plus 2c की जरूरत है। Yes, sir. तो क्या मुझे यहाँ पे नजर आता है? Yes, sir. तो मुझे ऑपरेशन में R1 goes to R1 plus R2 plus R3 लगाना चाहिए क्या? Yes, sir. Yes. लगाओ, चलो एक बार अप्लाई करो फटाफट। Everyone apply. R1 goes to R1 plus R2 plus R3. What we are going to get, आराम से तसल्ली से लगाना, do not rush, because मैं कह रहा हूँ इसलिए रश करना लगे, ऐसा कुछ नहीं है, just let's give it time. Okay, in this question let's just apply R1 goes to R1 plus R2 plus R3. What will we be getting is a plus b plus c, a plus b plus c, and a plus b plus c. 2b, 2c, b minus c minus a, 2c, 2b, c minus a minus b. Now we can see a plus b plus c common आ रहा है first row से, so a plus b plus c common लिया, I'll be getting 1 1 and 1, 2b, b minus c minus a, 2b, 2c, 2c, c minus a minus b. Now 3 1 मिल रहे हैं फर्स्ट रो में, 2 को 0 बनाते हैं, c1 goes to c1 minus c3, c2 goes to c2 minus c3.
what I'm going to get is a plus b plus c multiplied by 1 minus 1 0, 2b minus 2b is 0, 2c minus c plus a plus b, that is c plus a plus b, that is a plus b plus c, right? If you say 1 minus 1 0 again, b minus c minus a minus 2b, that is minus of c minus of a minus of b, 2c minus c minus a plus a plus b, so that is c plus a plus b, and 1 2b c minus a minus b. Now फर्स्ट कॉलम से a प्लस बी प्लस सी फिर से कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से a प्लस बी प्लस सी फिर से कॉमन आ रहा है, तो मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, दो बार कॉमन और आया, 0 0 1 0 minus 1 and 1 1 2b and c minus a minus b. Now expanding across first row, what will we be getting? a plus b plus c का whole cube into 1 into 1 0 minus minus 1, that is 0 plus 1, that is a plus b plus c का whole. Yes or no? Yes, sir. सबको बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So again, looking at the question like it should be is very important कि हम जब किसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमारे पास RHS में मुझे क्या चाहिए था, a plus b plus c चाहिए था, उसको बनाने का कोशिश करें. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes. Good. Moving on to the next question. X plus y plus 2z, y plus z plus 2x, z plus x plus 2y. So you can see it's very symmetric. एक बार z में 2 आया है, एक बार x में 2 आया है, एक बार y में 2 आया है. फिर यहाँ पे z और z given है, यहाँ पे x और y given है, x y given है. So how do you want to approach this? बताए कोई भी. C1 पे C1 plus C2 plus C3. C1 goes to C1 plus C2 plus C3, so 2x plus 2y plus 2z मिलेगा मुझे. जैसे इन तीनों को ऐड करेंगे, C1 2x plus 2y plus 2z, 2x plus 2y plus 2z, 2x plus 2y plus 2z. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes. 2 times x plus y plus z common आया. Yes, or sir. no? And we are done. Yes. Yes, sir. कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. 3 बार एक आ गया, 2 को 0 बनाएंगे. जीवन में आसान ही आसान, कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती. ओके, कोई बच्चा कहता है सर अभी आप ऊपर ज्ञान दे रहे थे कि राइट हैंड साइड में जो फैक्टर चाहिए वो बनाओ, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड. तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सर मैं कुछ z माइनस करूँ, यहाँ पे माइनस z करेंगे तो ये काम हो जाएगा. मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो. रो 3 पकड़ो और करो. r1 goes to r1 minus r3, r2 goes to r2 minus r3. It will yield the same result. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, थोड़े से माइनस कॉमन लेना पड़ता है कभी कभी, but that is something that you will easily be able to do. Okay, so this one will be your homework. फिर अगर नहीं होगा तो हम कल डिस्कस करेंगे. Yes. चलो आगे बढ़. Question number 12. Now 12th question is the easiest. मतलब सबसे ज्यादा आसान है. कैसे? देखो मुझे 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए और वो भी 2 फैक्टर्स चाहिए. तो मैं कहता हूं सिंपल सी बात, C1 goes to C1 minus x C3. What will Yes. happen? देखें जरा ध्यान से. 1 minus x cube, x square minus x square 0, x minus x 0. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. मैं कहता हूं C2 goes to C2 minus, सॉरी ठीक है, मेरे को एक बार फिर से लिखना ही पड़ेगा. C2 में मैं कुछ, चलो मैं कर देता हूं. C2 goes to C2 minus x square C3. क्यों? क्योंकि मैं 1 माइनस एक्स क्यूब चाहता हूं. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir.
Yes. मिलेगा sir. x minus x की पावर 4 1 minus x cube and then 0. यहाँ पे मुझे मिल रहा है x square x और 1. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. No, sir. नाउ इसमें मैं x कॉमन लेके लिख सकता हूँ क्या? x into 1 minus x cube. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो sir. देखो कॉलम 1 से 1 minus x cube कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 से 1 minus x cube कॉमन आ रहा है, तो 1 minus x cube का स्क्वायर कॉमन 1 0 0 x 1 0 x square x 1. Any issues anyone? No, sir. No, sir. No, sir. Now let's just expand across this. So 1 minus x cube का whole square into 1 into ये तो दो जीरोस हो रहे हैं तो कॉलम 1 का क्रॉस एक्सपेंड करेंगे तो 1 into 1 1 minus 0 into x 0. That is 1 minus x cube का whole square. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So it's a one liner. किसी को कोई भी तकलीफ है? No, sir. No. No, sir. sir. इसी क्वेश्चन No, में sir. बताना चाहूंगा, जैसे ये तो हमने किया, मैं कहता हूँ कि मैं अगर ये C3 वाला ऑपरेशन ये C2 वाला ऑपरेशन ना लगाऊं तो भी ये